Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am here ready for presenting a lecture on sheet pile wall and with anchored bulkhead, Unit 5 in Geotechnology, 6th semester. This is my lecture number 4 about Unit 3rd and 4th. I am taking both simultaneously. So you can refer my previous lectures if you are having any doubt regarding any previous topics. So before I will start, I just introduce about sheet pile wall and anchored bulkhead with the help of some slides which I am showing here. Okay. So this is sheet pile wall definition. As I told you about sheet pile wall, sheet pile walls are retaining wall constructed to retain earth, water, any other filling material. These walls are thinner in section compared to masonry walls. शीट पाइल वॉल्स वो वॉल्स होती हैं, जैसे हमने ब्रेस्ड एक्सकेवेशन पढ़ा है, ब्रेस सिस्टम, शीट पाइल वॉल को हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज करते हैं, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक रिटेनिंग वॉल्स, लाइक जो नॉर्मल रिटेनिंग वॉल हम मटेरियल की बनाते हैं, लाइक मेसनरी एंड अदर मटेरियल. सो शीट पाइल वॉल आर यूजफुल फॉर रिटेनिंग द soil mass as well as for waterfront structures. So you can see in this figure, this black line is a sheet pile. Okay, and this whole system is known as the braced excavation, as I told you in previous lectures. And these wales struts are the component of braced excavation. So this is sheet pile walls definition. This is a figure introduction only. So this wall retained the soil mass of this portion and this wall retained the soil mass of this portion. I also made a lecture about coffer dams, but before starting anchored bulkhead, I just introduced about these terms. So coffer dam site, you can see in this figure, this is a coffer dam. Coffer dam is a temporary structure we construct at the construction site for the prevention of water. हम वाटर की एंट्री को उस पर्टिकुलर साइट पे एक मैक्सिमम लिमिट तक रोकने की कोशिश करते हैं. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉफर डैम्स. सो इसके लिए मटेरियल जो भी इजीली अवेलेबल होता है उसका हम यूज करते थे. And this is the construction site, and this is the outermost layout is the coffer dam structure. Now, material used for the construction of dam or sheet pile wall. अब शीट पाइल की हेल्प से कॉपर डैम्स को बनाते हैं. शीट पाइल इंडिविजुअली भी सॉइल को रिटेन करने के लिए यूज करते हैं. मटेरियल का जहां तक यूज करने की बात है, आप टिम्बर का यूज कर सकते हैं, कोई प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर एल्यूमिनियम शीट का यूज कर सकते हैं. जो भी मटेरियल इजीली वहां पे अवेलेबल होता है हम उसका यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर एट दैट साइट. पर हम पूरी तरीके से पानी की एंट्री को नहीं रोक सकते हैं. एंड वी हैव टू डू सम फर्दर steps, like after the penetration of water, we will just pump out that water with the help of some pumping system. So you can see in this figure. Now these are the categories of sheet pile wall, or you can say the types: cantilever sheet pile wall, braced coffer dam type, earth embankment, rock fill, double wall, and cellular type. This is
similar to the classification of cofferdams. कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल्स, कैंटिलीवर शीट टाइप वॉल्स को हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी डेप्थ अप टू 18 फीट के अराउंड होती है, राइट. नेक्स्ट, earth embankment. This type of cofferdam is suitable for high head of water with low velocity. A successful cofferdam does not exceed to be completely watertight because some seepage of water into the excavation is usually well tolerated. तो जो अर्थ एम्बैंकमेंट होता है जिससे हम शीट पाइल की हेल्प से जो कॉफर डैम बनाते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत पानी सीपेज होता रहता है और वी कैन नॉट प्रिवेंट कंप्लीटली, राइट. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ओनली अर्थ एम्बैंकमेंट. रॉकफिल एम्बैंकमेंट. This cofferdam type is made of rockfill material. A typical section rockfill cofferdam is better than the earthfill. These are very pervious and are usually provided with an impermeable membrane of soil to reduce the seepage over there. ठीक है. नेक्स्ट आता है डबल वॉल शीट पाइल. शीट पाइलिंग को भी हम डबल करते हैं if the penetration rate is high. अगर आप देखें कि ऐसी कोई साइट ऐसी है कि उसके आसपास कोई कैनाल या कोई वाटर सोर्स नेचुरली अवेलेबल है जहां से उस साइट पे पानी ज्यादा आ सकता है, तो वी विल कंस्ट्रक्ट डबल वॉल शीट पाइल जिससे कि मैक्सिमम लिमिट तक पानी की एंट्री को आप रोकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ नॉर्मली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो शीट पाइलिंग के ऊपर, व्हाट इज शीट पाइल वॉल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट, ये जनरली पूछा जाता है. These are also some slides. You may write this on your notebook. आप ब्रेस्ड कट या ब्रेस्ड एक्सकेवेशन का फिगर देखिए. यहां से जो क्वेश्चन बनता है that is also theoretical and about braced excavation and braced cut. इसमें नॉर्मली यही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ब्रेसिंग. सो व्हाट आर द कंपोनेंट. कंपोनेंट के लिए जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें ये स्ट्रट हो गया कंपोनेंट, ये वेल्स हो गया, ये जो इंक्लाइन मेंबर्स आप लगाते हैं ये आपके सारे कंपोनेंट में आते हैं. सो यू हैव टू ड्रॉ दीज ऑल फिगर्स by explaining these small terms. This figure you can show components is this wheel, this struts. अगर आपको यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर भी लगाएंगे लाइक रैकर्स तो ये भी आपको कंपोनेंट में आता है. तो आप इनके बारे में डिटेल यहाँ से भी लिख सकते हैं और आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं. यू मे रेफर द बेस्ट बुक इज फॉर दिस टॉपिक इज गोपाल रंजन. You can take theoretical portion from that book also. So this is a vertical sheeting. ये जो शीट पाइल वॉल है ये टिम्बर की है. इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे टिम्बर के हैं. वो हम किसी भी मटेरियल का यूज कर सकते हैं और इनको हम ऐसी जगह पे हमने इनको कंस्ट्रक्ट किया है जहां पे हमें सॉइल मास को रिटेन करना है. सपोज ओके बीच में हमें कोई सीवर लाइन या कोई पाइप लाइन अगर लेट करनी है तो हम एक्सकेवेशन करने के बाद दोनों पार्ट को पार्ट उस ब्रेसिंग सिस्टम के थ्रू रखते हैं. So this is a practical example of this. You can also see this figure. In this wales, struts, joint, these are the components. You may draw this figure why for explanation. Okay. So this is braced cut, braced excavation and component of bracing system. Now I also told about the retaining wall in previous lecture and retaining wall design. That is also very important question and definitely will asked by the examiner in the examination of 10 marks. So I am just why I am repeating these things because if I will say maybe you will just prepared it. So now I will come on. You may write this.
Now I will come on anchored bulkhead. These are the topics which are correlated to each other. That is why I am just showing the previous one, then the new one. So today I am just ready to explain anchored bulkhead. Okay, so what is anchored bulkhead? आप इसमें देख लीजिए anchored bulkhead क्या होता है? If tie rod or anchor rods are enclosed to the upper end of sheet pile walls. अभी क्या था, sheet pile wall आपने कंस्ट्रक्ट की, sheet pile wall कुछ पोर्शन ऊपर निकला हुआ होगा, कुछ पोर्शन नीचे, नीचे जो होता है वो ड्रेज लाइन के नीचे वाला पोर्शन बोलते हैं इसको. ओके, आप अर्थ प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, या जो अपर वाला पोर्शन है अगर उसमें अर्थ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, शीट पाइल वॉल का जो मूवमेंट है वो उसमें मूवमेंट होगा और उसका शेप चेंज होगा. इस शेप को चेंज होने से रोकने के लिए वी विल यूज सम टाई रॉड एंड एंकर रॉड एट द अपर सरफेस. ओके, दीज, इसमें क्या लिखा हुआ है, द शीट पाइल आर कॉल्ड बल्कहेड और एंकर्ड शीट पाइल इफ टाई रॉड एंड एंकर रॉड्स आर used at the top surface. The tie or anchor rod reduce the lateral deflection and bending and the depth of penetration. हम ऊपर टाई रॉड को एंकर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट समझ सकते हो जिससे कि उस शीट पाइल वॉल में, ये है, आप इस फिगर को देखिए, ये जो मैं जिस पे मैंने एरो किया हुआ है ये आपकी शीट पाइल है, राइट. यहाँ पे सॉइल, आप टुवर्ड्स द सॉइल क्या कौन सा प्रेशर लगता है, पीए, दैट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर. अगर एक्टिव कहीं पे एक्सर्ट होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैसिव भी एक्सर्ट होगा. ओके, एंड वी विल सी दिस इज द ग्राउंड सरफेस. यहाँ पे हमने सरफेस के नियर ये टाई अप कर रखा है, एंकर्ड कुछ इस तरीके का सिस्टम लगा रखा है जिससे कि ये वॉल स्टेबल रहे, इसमें डिफ्लेक्शन ना हो इस प्रेशर के बाद भी. दैट सिस्टम इज नोन एज द bulkhead and this is known as the anchored bulkhead. Okay, यहाँ पे जो ये डॉट डॉट लाइन है, this is the deflection. If there is any having any deflection, so it may be like this deflected shape of beam. This is a dredge line. This is a passive area. Obvious सी बात है कि ये अगर लेवल है और ये ग्राउंड सरफेस है, ये दो लेवल के बीच में आपने रिटेनिंग वॉल बनाई है, यहाँ से एक्टिव प्रेशर लग रहा है तो वो एक्टिव जोन हो गया, यहाँ से पैसिव प्रेशर लग रहा है तो ये पैसिव जोन हो गया. सो दिस इज द फिगर यू में draw. What is PA? PA is the active earth pressure, PP is the passive earth pressure. ठीक है, तो एंकर्ड बल्कहेड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि एंकर्ड बल्कहेड जिसमें हमने टाई रॉड एंकर रॉड का टॉप ऑफ द सरफेस यूज किया है. क्यों किया है? जैसे कि हम लोग टू रिड्यूस द लेटरल डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट. अगर शीट पाइलिंग में ही डिफ्लेक्शन या बेंडिंग हो रही है तो हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, आपको बीच में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, तो आप जो शीट पाइलिंग वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी appropriate and having no deflection. Okay, इस पे भी थ्योरी आती है आपकी एग्जामिनेशन में, व्हाट इज एंकर्ड bulkhead and how anchored bulkhead determined. Two methods we are using here, so this is most important topic and at every exam it will come. So यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, anchored bulkhead are extensively used in waterfront structures. This line, this is also very important. They are constructed by driving raw of sheet pile to required depth. The soil in front of wall is dredged out to the required depth. In front of wall and behind the wall is backfilled by suitable soil. The wall is supported at the top by tie rods and bottom by passive earth resistance. ठीक है, tie rods से आपको tie up करना है. Next, ये आपने इतना देख लिया. इसके बाद आप लिखेंगे how anchored bulkhead determined. So anchored bulkhead depth is determined by two methods. First is your free earth support method, second is your fixed earth support method. ठीक है, just note down this.
Now we come on fixed earth support method. Now, sorry, first is free earth support method. Okay. So what is, you may write the free earth support, in free earth support method, an anchored sheet pile is said to have free earth support when the depth of embedment is small and pile rotates at its bottom tip. Thus, there is no point of contrafraction in the pile. जब एम्बेडमेंट की लेंथ जो होती है वो कम होती है, आपकी जो डेप्थ, एक्सकेवेशन की डेप्थ है वो कम है, तब आप इसका यूज करते हैं फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड का। यहाँ देखिए, इन फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट, मतलब जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट है वो क्या है, कम है। टू प्रोवाइड एंड रेजिस्टेंस द वॉल इज एज्यूम टू बी फ्री सपोर्ट बाय टाई रॉड एट द टॉप, by passive earth resistance of soil at bottom, the force acting on the wall as well as the deflected shape of wall in shown in this figure. आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। ये शीट पाइल वॉल है, ये एक्टिव वेज है, ये डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम है, ये पैसिव है, ये पैसिव वेज है, और यहाँ पे टाई रॉड से इसका एंकर्ड किया हुआ है। ओके, now let various notification in this figure. T is the tension in the tie rod per unit length. B use. D is the depth of penetration below the dash line. D जो डेप्थ है वो आपकी है, आप इस वाले फिगर में देखिए, ये वाला फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, अभी आप ये वाला फिगर भी सेम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इसका बेंडिंग शेप फिगर बना हुआ है। ये आपकी शीट पाइल है, ये यहाँ पे टाई रॉड पे टी लग रहा है जिसका अपर से डिस्टेंस ए है। ये ड्रेस लेवल, जो ग्राउंड जो लेवल है आपका, वहां से सपोज ये तो वाटर लेवल है, कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड वाटर तो हर जगह होता है, तो वो वाटर लेवल है। ये एक ड्रेज लाइन है जहां तक पेनिट्रेशन है, वो जो डेप्थ है वो डी है, अपर डेप्थ आपकी एच है। ये पी पी एम मतलब पैसिव जोन में जो प्रेशर लगेगा, इस साइड से जो लगेगा वो एक्टिव प्रेशर होगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इसके बाद यहाँ नीचे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मोमेंट होगा, और यहाँ पे पैसे लगने की वजह से ये इस तरीके से, तो अगेन ये एंड में यहाँ पे जीरो हो जाएगा। P is the active pressure in the wall and PPH पैसिव रेजिस्टेंस या फिर पैसिव प्रेशर। पैसिव प्रेशर को हम PPYF लेते हैं हमेशा, PPYF मतलब F फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। ओके, सो हमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट निकालनी है डी। इसमें हमें यही निकालना होता है इस मेथड में। इज फाउंड out by taking moment of all forces about the line of action of the tie rod. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टाई रॉड के अलोंग आप मोमेंट निकाल दें, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टाई रॉड। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टाई रॉड, यहाँ इसके अबाउट सारे फोर्सेस की मोमेंट को हम निकाल देते हैं। तो आप देखिए, पीए इंटू 2/3 एच प्लस डी। पीए क्या है, पीए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके अलोंग अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो 2/3 पे एक्ट करता है फ्रॉम बॉटम, तो हमने इसीलिए इसको पीए 2/3 एच प्लस डी लिया है, लेकिन इस पी के अलोंग लेना है तो ए को हम माइनस करेंगे क्योंकि ए इंक्लूड हो गया उसमें। 2/3 एच प्लस डी माइनस ए, ये हो गया एक्टिव का, माइनस पीपी पीपीएम, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, पीपीए माइनस एच प्लस डी एच
प्लस डी और माइनस ए, क्योंकि टी के अलोंग लेना है। ओके, तो ये इतना अमाउंट आपने ले लिया। यहां से आप डी कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने 0 कर दिया, यहां से आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। अगर आप डी कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप फिर एक इक्वेशन और बना सकते हैं सिर्फ फोर्सेस की। कैसे? यहाँ पे पीए, पीपी और टी भी आपका जो इस डायरेक्शन में टाई रॉड के अलोंग लग रहा है, ये भी नेगेटिव होगा। इसकी डायरेक्शन आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे एंकर्ड हुआ है ये, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसको भी हमने 0 कर दिया, ये इक्वेशन। तो यहां से आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब टाई रॉड में जो आपका टेंशन है वो और जो एम्बेडमेंट लेंथ है, आप दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो यू मे ड्रॉ दिस फिगर and this is also okay. Now in order to, इसमें आप एक पॉइंट मुझे और बताना था, पेनिट्रेशन आप 20 से 40% इंक्रीज कर सकते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1.5 लेके चलते हैं। ओके, नाउ द सेकंड मेथड इज फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड। फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड में सेम प्रोसीजर को करना है। टाई रॉड के अलाउंग जहां पे एंकर्ड कर रखा है वहां पे आपको मोमेंट लेना है और आपको फोर्सेस की इक्वेशन बना के वहां से टी निकालना है। बट द डिफरेंस इज, in fixed earth support method, depth of penetration is adequate and soil below the dredge line provides considerable anchorage. The wall acts as proper cantilever beam and cannot rotate freely at its lower end. नीचे जो वॉल है, क्योंकि इसमें एम्बेडमेंट लेंथ ज्यादा होती है, जो ड्रेज लाइन जहां एक्सकेवेशन किया उसके नीचे लेंथ ज्यादा है, तो सॉइल प्रेशर ज्यादा होगा। सॉइल प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे आपको एनकरेजमेंट प्रॉपर देना पड़ेगा, तो वहां पे जो मूवमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर भी होगा, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट वहां पे बहुत सडनली चेंज होगा। इसलिए फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड में जो आप टाई रॉड्स के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। देन आई विल शो यू। ओके, I will show you on next lecture from this slide, because some derivation portion is missing here. I will just take it from this point. Now the similar topic is cofferdam, which I already told you. Mostly the important question is what is cellular cofferdam and what is diaphragm type cofferdams. So I already explain cofferdams, but this is the figure of diaphragm type cofferdam. This type of structure, this diaphragm, this is the working area and this is covered by the, in this way, sheet piling walls, and from this type of shape, this is a plan view. ओके, यहाँ पे शीट पाइल वॉल्स होंगी, नंबर ऑफ शीट पाइल वॉल्स को सीरीज में आप लगा के इस टाइप की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। And this is a figure of circular type cellular cofferdams. It consists of set of large diameter circular cells interconnected by arc of smaller diameter, as shown in this figure. The walls of connecting cell are perpendicular to main circular cell of large diameter. Okay, so this is a type of circular cofferdams. Okay, so in this topic हमने एंकर्ड बल्क हेड को समझा एंड कॉफरडैम्स के दो टाइप को समझा। सो व्हाट इज बल्क हेड? Bulk head or sheet pile wall are especially type of retaining structure in which a continuous wall is constructed by joining the sheet piles.
Okay. Sheet piles are made of timber, steel, reinforced concrete, and a special type of material. Sheet pile walls are used for waterfront structure, canal locks, cofferdams, and river protection and many other uses. Okay. इसके बाद मैंने diaphragm type cofferdam के बारे में बात की. This one. In this type of cofferdam, circular arc on the inner and outer side which are connected by straight diaphragm walls. The connection between curved part and diaphragms are made by means of specially fabricated by element. The cofferdam is thus made from interconnected sheet piles. Okay. And circular type cofferdams, this one, it consists of set of large diameter main circular cell interconnected by arc of smaller cells. The wall of connecting cells are perpendicular to the wall of the main circular cell of large diameter. So this is also very important portion which I covered today. Okay. So this is all about this lecture video. Thank you very much. If you have any doubt or any question, then you can send me the message or you can comment. Thank you.